जावेद हमारे साथ बने रहे। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन आफ्टर द सीजर of the Red EcoSport belonging to Umar. The National Investigative Agency is still conducting investigations and raids and searches in the Khandawali village of Faridabad. I want to go across to Brian. Brian, if you can hear us, we are now learning that searches and raids are still being conducted in the Khandawali village in Faridabad after that Red EcoSport car was actually found over there. We will try to reconnect over there with Brian. जावेद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास भी अपडेट्स होंगे इसके बारे में। एनआईए अभी भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, रेड्स और सर्चेस कर रही है वो खंडावली विलेज में। और धौज के इलाके में है और तमाम अलग अलग लोकेशंस पे जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। और जिस तरीके से I-20 EcoSport जो है खंडावली गांव के पास की धौज इलाके में ही एक सरपंच मिली थी पार्क हुई और उससे लेकर कल रात में फॉरेंसिक की टीम आई थी और एनएसजी की टीम पहुंची थी, एनआई की टीम पहुंची थी और इस वक्त भी जो है एनआई की टीम जो है मौके पे मौजूद है और तमाम तरीके से फॉरेंसिक एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेसिकली इस एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया था कल रात में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस जो गाड़ी को बताया गया कि कैसे वहां तक पहुंचाया गया, कौन सा शख्स उसको वहां पर जो है जिस पे आरोप है कि उसने गाड़ी को पार्क किया। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस गाड़ी को लेकर तलाश की जा रही थी, आखिर वो गाड़ी दिल्ली से दूर 70 किलोमीटर की दूरी पर खंडावली के गांव में मिला और अब जिस तरीके से सस्पेक्ट को लेकर इसके तमाम सीसीटीवी और दूसरे बेस पर इस गाड़ी की जानकारी मिली थी और इसे ही लेकर इस गाड़ी की तलाश थी, जो कि दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, जो पहले रजौरी गाड़ी ऑनरशिप थी, लेकिन बाद में ये सिला के ऑनरशिप पे ये रजिस्टर्ड थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के जो ऑनरशिप में जो नंबर है और नाम है वो उमर के नाम था और उमर का वही नंबर इसमें मेंशन था जो नंबर को लेकर अब एजेंसी तलाश कर रही थी। उसके कॉल उसके पूरे डिटेल्स को, उसके व्हाट्सएप को, उसके फोन के तमाम उन चैट्स को, जिससे कि एक बड़ा जो आपको ये भी बता दें कि एक डायरी भी मिली है जांच अधिकारियों को इस पूरे ब्लास्ट के बाद जांच में, जिस डायरी से कुछ का पता चला, जिसको लेकर भी जो है एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, हरियाणा क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें या फिर यूपीएटीएस, वो इस पूरे मामले को लेकर भी उसकी जांच कर दी और डायरी से कुछ कोड्स मिले जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। जी Brian, what more details could you share about these ongoing raids and searches that are being conducted in Khandawali village in Faridabad? Well, definitely, as of now, we are also on our route to the Khandawali village. There was a place from where the Red EcoSport was confiscated by the police. Right now, as we are also speaking and we are on our route to that very location, NIA, NSG, the bomb squads have been deployed there to ensure and to carry out searches. Not only that, clearly they've been completely sanitizing the place, completely searching the space, and not only that, an aggressive searching is going on. Evidence collection is happening through the night, and even now as we are talking, the searches are going on as part of this very ongoing investigation that is being carried out by NIA. There have been NSG deployment, the dog squads, the bomb squads have been there itself. Yes. All right, Brian, please do stay on with us. We have some more breaking updates coming in. Counterintelligence Kashmir is conducting raids across 13 locations in the valley. These raids are reportedly connected with the ongoing investigation of the Delhi blast case. I want to go across back to Ajay. Ajay, we are also learning of more raids and searches in the valley. We are learning that around 13 locations are being looked at. Give us more details, please. Yes, CIK is ensuring that every terror module has to be properly investigated and terror infrastructure has to be totally ended in the Jammu and Kashmir. That is the motive seems to be of
the intelligence agencies and the agencies operating the Jammu and Kashmir, our sources are saying that the raids are continuously going on, and this is to ensure that every aspect of terror operatives, those who are operating in Kashmir and helping these terrorists to do any kind of a terror attacks, they want these people to be identified, these people to be properly checked, and then action will be taken against them. More than 200 people have been detained by the Jammu and Kashmir police and other intelligence agencies in this regard, and they are ensuring that every such people, those who are hiding in Kashmir, they have to be identified. Right. Ajay, we also are learning that a major recovery has been made in the Delhi blast port. Reportedly, Umar's diary has been recovered. Jaish-e-Mohammed plotter Muzammil Shakil's diary also has been recovered, and additionally the word operation has been mentioned in this diary as well. So that's very important, that news that's coming in, that they have written the word operation inside their diaries. Yes, sources are saying basically, right after investigation was started and the things started unfolding, investigation agency, they came to know that Umar and Muzammil, they have written a diary as well. And during the searches, they have found that in these diaries, or word operation is being used, and operation is generally two people can use. One is the doctor, those who are the surgeon or something, and other is somebody involved in the terror-related activities. And that is the reason, because of, that seems to be the reason that they both were using diaries to note the things and definitely to execute it in the coming time. As I said, that there are now input that three, important things that they have found. That one is, that they were planning to attack on the Diwali, but they missed the date. Another is the 6th December, and third one is the 26th, January, which is Republic Day. So it seems that they were choosing the important dates, and their plan was basically one attack in Delhi, another is there in the Uttar Pradesh, since it is basically related to the Babri Masjid demolished date. So that's why it seems that they were planning to carry out attack in Uttar Pradesh, and third, basically they wanted to carry out somewhere on the Diwali. Right, Ajay, please do stay on with us. As per sources, Dr. Umar Nabi had planned the blast around December 6th. The plan was to avenge the demolition of disputed structures. Now, these details have been put together after interrogating the suspects. Reportedly, Umar's plan fell apart after Dr. Muzammil's arrest. I want to go across to Javed. Javed, अभी हमें और भी चीज़ें गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है. हमें पता चल रहा है कि उन्हें दिसंबर 6 का टारगेट रखा था ये ब्लास्ट करने के लिए, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और भी चीज़ें पता लग रही हैं. देखिए, जो लोग इस वक्त जो आरोपी जो हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहिद शाहीन और इसके अलावा परवेज, जिन लोगों से इससे पहले भी 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मॉड्यूल से तक पहुंचने में, तो इस जांच अधिकारी को ये जानकारी मिली है कि ये लोग 6 दिसंबर को जो बाबरी जो मस्जिद को लेकर था, इनके मन में ये नाराजगी थी और ये लोग 6 दिसंबर को इस ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया था. लेकिन जिस तरीके से सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास ही जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इनका जो मंसूबा है वो नाकामयाब हो गया और जो इनके आगे का जो नेटवर्क था वो नेटवर्क पूरी तरीके से टूट गया. अब सेंट्रल एजेंसी जो इस पूरे मामले को जांच कर रही है, यूपी एटीएस इसको लेकर यूपी में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के कुछ इलाकों को लेकर अपने नू और मेवात का नू का इलाका है, साथ ही धौज के इलाके में अपने रेड को कंडक्ट कर रही है और साथ ही एनआईए के पैरेलल एनआईए को इसमें सपोर्ट भी कर रही है. हरियाणा क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है. लेकिन सबसे अहम यह है कि अब इसके आगे का नेटवर्क कौन कौन लोग थे इसमें और कितने लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि जो उम्र है वो माना जा चुका है. डीएनए सैंपल से ये साफ जो मैच होने के बाद ये साफ जाहिर हो चुका है और उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था
और उसे कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है, जिस तरीके से उमर की इस ब्लास्ट में मौत हुई है, कि उसे पता था कि जितनी एक्सप्लोजिव इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, उससे अगर थोड़ा सा भी अगर डिस्पैच होता है या जो इसको जैसे कि इस पैटर्न में जो अब साफ हो पाया है कि इसे यहाँ पे ब्लास्ट नहीं करना था और ये पूरी तरीके से जो है असेंबल नहीं किया गया था, इसे कहीं और ठिकाने लगाना था। अब उसमें ये भी जांच में सामने आया कि अयोध्या भी इनके टारगेट पे था और 6 दिसंबर को एक बड़े मॉड्यूल को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अब इनके टारगेट, इनके जो नेटवर्क, आगे कौन कौन लोग थे इससे जुड़े हुए थे, इनको लेकर जो है एजेंसी पूछताछ कर रही। लेकिन ये एक अहम खुलासा हुआ है अभी तक के जांच में, पूछताछ के दौरान। और देखिए, सबसे अहम ये डायरी भी माना जा रहा है, जिस डायरी में कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, उस कोड को समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, जानकारी के मुताबिक जो कोड है वो एक डायरी में पूरी तरीके से बाकायदा मेंशन किया गया था। कुछ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो कुछ एड्रेस मिले हैं जिसको एस्टैब्लिश किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी ये भी सामने आई है एक पूछताछ में कि उमर और मुजम्मिल में कुछ पैसों को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद इन लोगों में मनमुटाव चल रहा था। अब उमर जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते जो है वहां से शुक्रवार के वक्त से ही वो मिसिंग हो गया, वो वहां से लापता हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माना जा रहा है कि इससे पहले भनक लग चुकी थी कि एजेंसी और स्टेट पुलिस वहां तक पहुंचने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन दोनों में विवाद चल रहा था और इन लोगों ने मिलकर मेवात के ही इलाके में, जिसमें लू, धौज और तमाम वो इलाके जहां से इन्होंने इसके परचेस किया था, इसको लेकर इसमें 3 लाख जो है वो पैसे खर्च हुए थे। फिलहाल इस पूरे जो नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क के नेक्सस को जो है अब एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी मान रही कि इसके आगे के का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के कनेक्टिविटी भी वो सामने आएगी। क्योंकि देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल का जो क्लास चल रहा था, वहां पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन भी हुआ है, इसमें और कितने लोग इस मामले को लेकर, क्योंकि आमतौर पर जो टेरर मॉड्यूल को समझने की जरूरत है कि आमतौर पर जावेद हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर inputs we'd like to introduce to our viewers. In Lucknow, Dr. Shaheen, arrested for her terrorist connections, will be confronted with Dr. Parvez. Remember